یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایسے بیٹھے رہیں گے. ان کا خیال ہے, مجھے نہیں پتا پہلے لوگ جو قتل کر چکے ان کا کیا ہوا تھا. ہم بیٹھیں گے بھی نہیں اور ہم اس کا حساب بھی لیں گے اور اس کا بدلہ بھی لیں گے. یہ ہمیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر آنکھ خراب کی جائے تو آنکھ کا حساب لیا جاتا ہے. تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی. اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی آنکھیں بچ جائیں گی, پھر یہ لوگ اپنی آنکھیں پٹیاں باندھ کے نکلیں گے, وہ اس کے اوپر کچھ چڑھا کے نکلیں گے, لیکن ان کی آنکھیں پاکستان میں بھی نہیں بچیں گی اور باہر کی دنیا میں بھی نہیں بچیں گی. انہوں نے عمران خان کی جان بوجھ کے خراب کی ہے. جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی آنکھ خراب ہوئی ہے, ان کی آنکھ خراب نہیں تھی, ان کی آنکھیں ٹھیک تھی. اور یہ اس کا علاج اس لیے نہیں کروا رہے کہ چاہتے ہیں کہ دوسری آنکھ پہ بھی اثر ہو جائے. یہ سب جھوٹ ہے اور اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے انشاءاللہ. آپ خود اٹھ کے جہازوں میں باہر چلے جاتے ہیں, آپ دنیا میں ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں, اور عمران خان کو ایک اسپیشلسٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ سپریم کورٹ کہہ رہے تسلی بخش ہے. میں یہ سارے ججز سے پوچھوں گی جب یہ جائیں گے پیمس کے اندر, ہم یہ ججز سے اور سارے پارلیمنٹیرین سے پوچھیں گے کہ آپ جائیں نا ان کے پاس, اللہ سے ڈریں. اگر عمران خان کے ساتھ آپ یہ تسلی بخش کہہ رہے ہیں نا, ہم بھی آپ پہ نظر رکھیں گے کہ آپ کس سے علاج کرواتے ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کن ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہو. اس لیے آئندہ آپ اس قسم کی بات ہمیں قبول نہیں ہے. اس سے جو ہماری اندر گئی ہوئی ہے, جو پٹیشن ڈلی ہے کل, حالانکہ یہ والی پٹیشن ہفتہ پہلے ڈال جانی چاہیے تھی, 17 تک ڈال جانی چاہیے تھی, جو جا کے کل ڈلی ہے. اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں. جو رپورٹ پبلک انہوں نے کی ہے, جو آفیشیلی پبلک کی گئی ہے, وہ ایک بڑی انایڈیکویٹ اور ان پروفیشنل رپورٹ ہے. میں پہلے بتا چکی ہوں, اس پہ کچھ نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کمیٹی کچھ نہیں کیا, اور یہ بہت کنسرننگ ہے کیونکہ یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ خان صاحب کی صحت ہے. اور یہ فکر کی یہ بات ہے کہ جن اسپیشلسٹ نے لکھا ہے وہ کہیں غائب ہو گیا وہ نظر. جو ہمارے اسپیشلسٹ جو ان سے کانٹیکٹ میں تھے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صرف ایک منیمم بات بتائی, اس کے بعد فون ان کے بند ہے. وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں, وہ کہیں ابڈکٹ ہو گئے ہیں, تو کچھ نہیں بتایا. سارے ڈاکٹرز بہت کنسرنڈ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ان کو مس لیڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے, جس کی بنا پر انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا 16 تاریخ کو, وہ ایک جرم ہے. اور ان ڈاکٹرز پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں, یہ اور ان کو سامنے لایا جائے. پبلکلی آ کے ہمیں فرسٹ ہینڈ خود بتائیں کہ کیا نہیں. پہلے تو بتائیں ڈائگنوز کیا ہے. انہوں نے ہم بتایا ہی نہیں ہے کہ ڈائگنوسس کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ٹریٹمنٹ, وہ نہیں کہہ رہے. ایک ان پروفیشنل رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے, اور اب تو دوسری دفعہ تو بتایا کچھ نہیں ہے. وہ جو آپ دیکھیں نا, کوئی اسکین رپورٹ نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا. بہت ہمارے سارے ڈاکٹرز پریشان ہیں, اور وہ ہمیں بار بار ہمیں پاکستان سے اور باہر سے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت سیریس ہے. اور پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے, یہ ڈیلے بھی جان بوجھ کے ہے. یہ ڈاکٹرز نے مس لیڈ کیا. ان کو جس نے بھی مس لیڈ کرنے کو کہا, میں ان ڈاکٹرز کو نہیں جانتی, سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو ڈیلے کر دیا. میں پھر دوبارہ کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ عمران خان نے جو بار بار کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ ان کو یہ ڈیلے سے ان کو جان بوجھ کے یہ ان کو قتل کر دیں گے. یہ جیل میں ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے سے کیوں چھپایا جا رہا ہے, اور ہمیں اس کی چیز کی بڑی پریشانی ہے. اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ امیڈیٹ پروسیڈنگز کی جائیں, پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ اگینسٹ کی جائیں, اور پھر ان کو سامنے ہمارے لایا جائے کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ. اچھا سلمان صفدر صاحب, کچھ چیزیں بطور فرینڈ آف کورٹ. ایک سیکنڈ دیکھیں, ابھی جو ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی تھی کہ جو 16 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دی ہے ڈاکٹرز نے, وہ صرف اس لیے کی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تسلی بخش علاج ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ رپورٹ انہوں نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے. جو
जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिख के भेजा है उसने कहा है कि मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा है कि इन्होंने हमें पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, और उसने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान का इलाज किया है ये ट्रेन नहीं है इस काम के अंदर। आप खुद उठ के जहाज़ों में बाहर चले जाते हैं, आप दुनिया में डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं, और इमरान खान को एक स्पेशलिस्ट भी नहीं देख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तसल्ली बख्श है। मैं ये सारे जजेस से पूछूंगी जब ये जाएंगे पिम्स के अंदर, हम ये जजेस से और सारे पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे कि आप जाए ना इनके पास, अल्लाह से डरें। अगर इमरान खान के साथ आप ये तसल्ली बख्श कह रहे हैं ना, हम भी आप पे नज़र रखेंगे कि आप किससे इलाज करवाते हो। हम आपको बताते हैं आप किन डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो। इसलिए आइंदा आप इस किस्म की बात हमें कबूल नहीं है। इससे जो हमारी अंदर गई हुई है, जो पिटिशन डली है कल, हालांकि ये वाली पिटिशन हफ्ता पहले डल जानी चाहिए थी, 17 तक डल जानी चाहिए थी, जो जाके कल डली है। इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नज़र आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, अब हम आपके मीडिया से करेंगे। अब मैं मीडिया से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ लॉयर से कि जो हमारे सारे लीडिंग लॉयर्स हैं, हामिद खान, खोसा साहब जिन्होंने ये पिटिशन डाली है, अली ज़फ़र साहब, अली बुखारी साहब, सलमान राजा साहब और गौहर साहब, माशाल्लाह 6 हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं, और मज़ीद बहुत लॉयर्स हैं। पीटीआई में तो माशाल्लाह लॉयर्स बहुत हैं। हम चाहेंगे कि आप सारे मौजूद हों, सुप्रीम कोर्ट से जाके डेट लें, इस पिटिशन की हियरिंग की डेट लें, और हम आपसे मतलब अपील करते हैं कि आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए और उनका वहाँ पे इलाज किया जाए। और बाकी जो जैसे जो अगर ये नहीं करते हैं, फिर हम पीटीआई को कहेंगे कि देखें इमरान खान की, जैसे डॉक्टर उस्मा ने कहा है कि एक आंख का नुकसान हमें नहीं पता कितना हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय उसके जो मौसम नकवी बता रहा है और जो उनके डॉक्टरों ने दिया, जो कि हमारा स्पेशलिस्ट कह रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि हम तसल्ली बख्श हमने करार दिया। हम तो इन डॉक्टरों को समझते हैं ये ट्रेंड नहीं है। जो स्पेशलिस्ट जिसके नाम पे ये सारी दवाइयाँ जा रही हैं कि इन लोगों का स्पेशलिस्ट था, उसने ये भी कहा है कि ना ये डॉक्टर्स ट्रेंड लगते हैं, ना इन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर समझाया है, ना हमें पता है ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बानी कलामी और रिपोर्टें कोई नहीं दिखाई गई। ये सोचें फ़ोन के ऊपर, मैं सारों को कहूँगी आइंदा आप भी लोग अपना इलाज जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप भी जाकर तसल्ली कर लेना जब कोई आपको फ़ोन पे आपको इलाज आपका बता देगा। इसलिए आप सब ने, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन नहीं एक्सेप्ट होती, तो अब हम कहेंगे लोगों को कि आपने अगर इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे सकता, हम पूरे पाकिस्तान को, पूरी पार्टी को और पूरे पाकिस्तान से अब अपील करने लगे हैं कि हर हालत में आपका, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारा बड़ा कीमती भाई नहीं है, पाकिस्तान का एक लीडर है, पाकिस्तान का ये वो हस्ती है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है। अपने मुल्क के लिए कर लें, हम कह रहे हैं भाई के लिए ना करें, मुल्क के लिए करें। आप लोगों ने, सब ने बाहर आ जाना है। जो ये कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज, कल मैं कोर्ट में खड़ी थी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ATC कोर्ट में जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर खड़ा था ज़ीर शाह, उसने कहा, मैंने कहा आप डेट की बात हो रही थी, मैंने कहा ज़रा डेट अगली वाली दे दें, हम नहीं अभी आ सकते। उसने कहा जी मैं चाहूँगा कि आज आप जेल में चली जाएं, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो मैंने कहा याद रखें, पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हमें हक देता है। जब हम कॉल देते हैं पुरअमन एहतजाज की, जो इमरान खान ने दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, जब कोई उसको चैलेंज करेगा, प्रोसिक्यूटर हो जाए या इसके ऊपर कोई सज़ा दे जज, इनके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती हैं। और ये एहतजाज ऐसे भी कह चुके हैं जो गलत सज़ाएं दे रहे हैं, इनके ऊपर भी
जजेस के ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए जो प्रोसिक्यूटर ये कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हक देता है इस चीज़ के ऊपर। जब आइन हमें हक दे रहा है, हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि पुरअमन एहतजाज के लिए इमरान खान की जो लीडर है उसकी आँख बचाने के लिए मैं सिर्फ कह रही हूँ आप बाहर निकलेंगे। अब एक मैं बात करना चाहती हूँ, ये जितनी भी आँख का मसला बता रहे हैं, मैं आपको अपने तौर पे बता रही हूँ कि आँख इन्होंने खुद जेल के अंदर उनकी ख़राब की है। ये उसको छुपा इसलिए रहे हैं कि ये करने वाले ये खुद है। इन्होंने जेल के अंदर उनकी आँख के साथ टीके लगाए हैं, जो भी किया, क्योंकि ये सब कुछ कर सकते हैं। ये लोगों को जेलों में मार सकते हैं, ये लोगों को जेलों में। इमरान खान की आँख खुद से ख़राब नहीं हुई, जेल वालों ने किया, उसको ये छुपा रहे हैं और उसको और ख़राब कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं दूसरी आँख पे भी ख़राब हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये तो पुरअमन बात कर रही हैं, मैं तो पुरअमन की बात ही नहीं करती। मैं सोचती हूँ लोगों को निकल के जल्दी एहतजाज करना चाहिए। ये वक्त ले रहे हैं, इनको टाइम चाहिए ताकि आँख और ख़राब हो जाए, और ये समझते हैं कि हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे। इनका ख्याल है, मुझे नहीं पता पहले लोग जो कत्ल कर चुके हैं उनका क्या हुआ था। हम बैठेंगे भी नहीं और हम उसका हिसाब भी लेंगे और उसका बदला भी लेंगे। ये हमें अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है कि हमारे साथ अगर आँख ख़राब की जाए तो आँख का हिसाब लिया जाता है, तो आँख के बदले आँख होगी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनका ख्याल है कि इनकी आँखें बच जाएंगी, फिर ये लोग अपनी आंखें पट्टियाँ बांध के निकलेंगे, वो उसके ऊपर कुछ चढ़ा के निकलेंगे, लेकिन इनकी आंखें पाकिस्तान में भी नहीं बचेंगी और बाहर की दुनिया में भी नहीं बचेंगी। इन्होंने इमरान खान की जानबूझ के ख़राब की है। झूठ बोलते हैं कि उनकी आंख ख़राब हुई है, उनकी आंख ख़राब नहीं थी, उनकी आंखें ठीक थी। और ये उसका इलाज इसलिए नहीं करवा रहे, ये चाहते हैं कि दूसरी आंख पे भी असर हो जाए। ये सब झूठ है और इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह।